विपरा ने जग रखिया पर कबूल नहीं हुंदा, सब देवतिया ने आके फेरे पाए। कृष्ण कहा जग इसलिए नहीं कबूल हुंदा क्योंकि महर्षि प्रभु वाल्मीकि नहीं आए। महर्षि प्रभु वाल्मीकि नू बुलाओ, चरनियों ना देखो तो के चरनामित सब नू पियाओ। उना दे आने न जग विपरा दा होना है परवान। ऋषियां दे ओ महर्षि भगवाना दे भगवान, ऋषियां दे ओ महर्षि भगवाना दे भगवान। ऋषियां दे ओ महर्षि प्रभु वाल्मीकि भगवान। जिस दे वर्गी करनी जग ते कोई भी कर सकिया ना, सदियां पहला सच लिख दिता भोरा औला रखिया ना। शंभूक ऋषि दी वार्ता सारी कीर्ति जिना बयान। ऋषियां दे ओ महर्षि भगवाना दे भगवान, ऋषियां दे ओ महर्षि भगवाना दे भगवान। ऋषियां दे ओ महर्षि प्रभु वाल्मीकि भगवान, ऋषियां दे ओ महर्षि प्रभु वाल्मीकि भगवान। रुमैन इन्हां दी पढ़ के देखो दुनिया दे सच नाल परी। ताइयों गुरु रविदास जी ने बाणी दे विच सी सिफत करी। लोड़ पैण ते कखां विच भी पा दिंदे ने जान। ऋषियां दे ओ महर्षि भगवाना दे भगवान, ऋषियां दे ओ महर्षि भगवाना दे भगवान। ऋषियां दे ओ महर्षि प्रभु वाल्मीकि भगवान, ऋषियां दे ओ महर्षि प्रभु वाल्मीकि भगवान। जो बोले सोलर भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 1008 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। साध संगत की जय। गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरु जय बाबा। गुरु रूपचारी साध संगत जी। श्री श्री 1008 सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर वाले इस पवित्र स्थान पर पिंड मटीली जठान जिला श्री गंगानगर राजस्थान दे विच सन 1958 दे विच आके टिब्बिया उपर धुआं ला के तपस्या की सी। इस तपस्या की शक्ति दे नाल महाराज सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज के बचन अनुसार इस खारे खूह नूं मिठा किया। खारे खूह नूं मिठा करके श्री श्री 1008 सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने रूहा साहब नूं आशीर्वाद दिता। जो इस खूह साहब के जल नाल मत्स्या की स्नान करेगा उन्होंने
ਨਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਨੋ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ 101 ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ 5 ਮੱਸਿਆ ਸੁਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਰ ਦੀ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਪੁਰ ਰੋਡ ਵਾਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮਟੀਲੀ ਰਠਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋਂ ਦੂਰਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਿਨ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਤੀਰਥ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਇਤਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋ ਜਪੇ ਹਰ ਜੈਸਾ ਕੋਈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਸਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਜਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹਨ, ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2.5 ਜਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਵੀਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮਹੰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹਨ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਮੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?
प्यारी साध संगत मंदा वो है जिहड़े मंदे कर्म करते हैं, भला वो है जिहड़े भले कर्म करते हैं। साधु महात्मा इस दुनिया उपर इंसान नूं सच दे रस्ते ते लाउण वास्ते, नाम जपण वास्ते ते जपाउण वास्ते आया करते हैं। जिस तरह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने लखां जीवां नूं नाम दे के इस संसार भव सागर तो पार किया, इस तरह प्यारी साध संगत जो भी साधु महात्मा आते हैं ये यही दसते हैं। जिस तरह कहते ने भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। उस परमात्मा नूं मिलण दी आही वारी है मनुष्य जन्म। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत की उन्होंने महिमा की हुई है। जिस तरह महापुरुष भी दसते हैं, कहते ने मनुखा जन्म मिलिया इंसान नूं नाम जपण वास्ते है। जिस तरह कहते गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस दे ही पाई। गुर सेवा ते भगत कमाई, गुरु की सेवा करनी, गुर सेवा ते भगत कमाई, भगती की कमाई करनी, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस दे ही पाई। जिहड़ा ये मनुष्य जन्म मिलिया है इंसान नूं प्यारी साध संगत नाम जपण वास्ते ते सेवा करने वास्ते ही मिलिया है। दूसरियां जिहड़ियां जूनियां हन पशु पंछी कुत्ते बिल्ली, वो अपने अंश नूं ही पाल रहीआं। हर एक इंसान अपने अंश नूं पालदा है, पर मनुष्य जन्म इस करके इसनूं दुर्लभ जून कही गई है, सारिया जूना तो ऊपर गिणिया गया है। जिस तरह कहते ने 184 जून अपाई, मानस को प्रभु दी वडियाई। इस करके प्रभु ने मानस को वडियाई दी है। प्यारी साध संगत जिहड़ा नाम जपे, गुरमुख बन के सिमरन करे। जिस तरह साडे परम पूजा महान पूर्णनाथ जी, उन्होंने जो कौमी ज्ञान प्रकाश ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ के अंदर लिखा है जितने वेद ग्रंथ ने योग विशिष्ट पुराण, मुँह किसे नहीं बोलना, कह गए पुरुष महान। जब तक सेवा गुरु दी करदा नहीं इंसान, तद तक खैर ददार दा पाउंदा नहीं भगवान। जिन्ना चਿਰ ਇਹ जीव गुरु धारण करके गुरु की सेवा नहीं करता, उन्ना चਿਰ इंसान उस परमात्मा की प्यारी साध संगत कभी भी दर्शन नहीं हो सकता। जिहड़ा गुरु वाला नहीं बनता उसका नाम क्या है? उसका नाम है नुगरा। बाणी कह रही है नुगरे तो कौन माड़ा हुंदा है? साकत। साकत किसनूं कहंदे ने? जिहड़ा अपने मन की मर्जी करने वाला, उसनूं कहंदे ने मनमुख। साकत। जिस तरह कबीर जी ने कहा है, साकत संग न कीजिए दूर हो जाइए पाप। जिन मनमुखा की साकतां दी संग करना वो नहीं चंगी, क्योंकि उन्हों का जोड़ा जीवन आ वो माड़े पासे, निंदा चुगली पासे, चोरियां वाले पासे, माड़े पासे लग जाता है। ये साधुआं की संगत इस जीव नूं जिहड़ा सतसंग है, ये एक सचखंड जाने वाली सड़क है। जिहड़ा नाम है एक सचखंड नूं जाण वाला नाम टिकट है। जिसनूं भी नाम का टिकट मिल गया, गुरु के दसे उपदेश से चल के अपने जीवन को मनुखा बना लिया, सफल हो गया। साध संगत सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज हिंदुस्तान के पाकिस्तान बनने तो पहले गुरु ज्ञाननाथ महाराज सन 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ वाल्मीकि तीर्थ पर अपना आसन लगाया। संगतां नूं वाल्मीकि तीर्थ बारे प्रचार करते रहे, उसनूं आबाद करते रहे। बड़ी कठिन तपस्या रोड़ा उपर करते रहे, घोड़िया में बैठ के तपस्या करते रहे।
उस तपस्या के बल नाल गुरु महाराज इस दुनिया उपर प्रगट हो गए, वाल्मीकि का स्वरूप बन गए। गुरु ज्ञाननाथ महाराज जिस टाइम दुनिया को तारते इस पिंड मटीली विच आए, क्योंकि जो सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज पिंड द बुरजी दुगैजा की जिला शेखपुर पाकिस्तान के विचों संगत उठ के इस मटीली विच आई, वो सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के सेवक सन। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी को पता लगा भी मेरी इतने संगत आई, सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज इस संगत को आए। संगतां ने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी को रब मन्निया, क्योंकि पिछे सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की शक्ति को जानते सी। पाकिस्तान के विच एक मूला चक पहलवान से उस जगह से रस्ता बंद किया होया सीगा, उत्थे देख रहिंदा सीगा। मूला चक जिहड़ा पहलवान सी उस देह नाल घुल पिया। मूला चक पहलवान प्यारी साध संगत, वो जो अपनी देह वधाउण लगा जिहड़ा देह सीगा, तो मूला चक जिहड़ा पहलवान सी उन्हें आख्या इहदा देह उधर दिल घबरा गया। उन्होंने पता लगा कि मैं देह नाल घुल रहा वा। तो फिर संगतां ने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज इत्थे दे देगा, उस देह में भी सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज पाकिस्तान के उस कंट्रोल में किया, अपने वस में किया, उसकी मुक्ति की सी। क्योंकि इस करके सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की बड़ी महिमा इस मटीली दी संगतां सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की महिमा को बड़िया जानदियां सी। फिर इन्हें इतने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी संगतां दे कोल आए, आके टिब्बियां दे विच उन्होंने धुआं लाया, अपने हथी धुआं ला के तपस्या करते रहे। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज इन्नी शक्ति सी अंदरूनी कि जो भी वो जानी जान सन, पर बरूनी जिहड़ा उन्होंने अखां अपनियां बंद करके रखा संसार को देखते हुए। अंदरूनी इन्नी शक्ति सी जिहड़ा कोई आउंदा सी उन्हां दी गल अंदर दी जान लेंदे सी। इत्थे बैठ के तपस्या करते रहे गुरु ज्ञाननाथ महाराज। इत्थे पहले ये मुसलमानों का पिंड सी, जो सारे एक हिंदुस्तान की पाकिस्तान 1947 के मुसलमान चले गए, तो उधरों संगतां जिहड़ियां पाकिस्तान के इत्थे आईयां सन, उन्हां दे कोल आए। उन्होंने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी जिहड़े सी उन्होंने दस्सिया महाराज इस जगह ते पानी पीने को नहीं। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज बोलते कि तुसीं जल सानूं किहड़ा छकाउंदे? कहते महाराज असीं तुहानूं जल जोड़े दा छकाउंदे। पंजाब दे वालिआं नूं बहुत घੱਟ पता है जोड़ा की हुंदा है। इधर राजस्थान के पता भी जोड़ा छप्पड़ को कहते, कहते तुसीं छप्पड़ दा सानूं जोड़े दा जल छकाउंदे जी? कहते हाँ जी। कहते इत्थे खूह नहीं हैगा? कहते खूह हैगा वा। कहते कित्थे? कहते महाराज इत्थे है मुसलमानों का पिंड है, इतनी जहर पा गई सी, नाले पानी इत्थों के सारे खारे निकलते, पानी कौड़े निकलते हैं। कहते चलो सानूं उस खूह ते लै खूह साहब ते लैके वो संगतां खूह साहब ते लैके आईयां सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज कहते पानी कढ़ो। संगतां दे हुक्म मान के संगतां ने सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज का बाल्टी भर के खूह चों पानी कढ़िया। महाराज ने खपरी में पाया, खपरी में छकन लगे तो संगतां कहते महाराज बड़े चिर तक खूह बंद होया, जलीला होया, जहर बड़ी पई है, कौड़े पानी आ, तुसीं ना कहते कोई गल नहीं, असीं पीने देखते भी कौड़ा वा कि एक घुट भरी सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज ने कहते खूह साहब के विच ही पा। दूसरी बारी फिर खूह चो बाल्टी भर के पानी कढ़िया तो फिर एक घुट भर के कहते ये विच ही पा। जो तीसरी बारी पानी कढ़वा के फिर खूह च पानी घुट भर के फिर खूह च पवाता तो कहते आ देखो हुण तुसीं जल पी के देखो कौड़ा वा कि मिठा पानी। जिन्हें जिन्होंने छकाया सारे कहते महाराज पानी मिठा।
कहते पानी मिठा। जो ये बचन किया तो कहते कि तुसी मिठा किया पानी, सतगुरु ज्ञाननाथ मारो सजदा कहते ने ऐसे नहीं कि भगवान वाल्मीकि की कृपा हुई उन्होंने मिठा किया। तुसी इस तरह करो कि आपां नूं परमात्मा ने भगवान वाल्मीकि जी ने जल दिता, अमृत दिता पीने वास्ते, इतों जल छकिया करो। जिहड़ा भी जल छकेगा उन्होंने दुख दूर होया करनगे, इत्थे मस्या लग्या करनगियां, इत्थे मेले लग्या करनगे। गुरु ज्ञाननाथ महाराज ने इत्थे बड़े वरदान दिते, पुत्रां दी दातां मिलणगियां, अन्यां नूं अखां मिलणगियां, कोड़ियां दे कोड़ दूर होणगे। गुरु महाराज ने इत्थे अनेकां ही वरदान दिते। ते प्यारी साध संगत उन्हां दी याद विच हाड़ दी मस्या ते चेतर की मस्या ते 2 सालाने मेले होंदे हैं ते हर महीने मस्या इत्थे लगती है। प्यारी साध संगत आप बड़े वडभागी हो जो कि दूर दरेडे तो चल के इस तीर्थ का दर्शन करने वास्ते आते। जो बोले सुन पै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 1008 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। भगवान वाल्मीकि आश्रम के इस भव्य सुंदर कार्यक्रम में संत बाबा करमनाथ जी, हमारे गंगानगर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन भाई धारीवाल जी, श्री शांतिलाल जावा जी, मेरे छोटे भाई नगर पालिका कर्णपुर के पूर्व चेयरमैन राजकुमार वाल्मीकि जी, मेरे साथ राजस्थान पुलिस के पुलिस जवाबदेही समिति जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह मान जी, मंच पर विराजमान अन्य सम्मानीय नेतागण और बीच में हमारे जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, सभी परम श्रद्धेय संतगण, सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज ये भव्य और सुंदर मेला, और जहाँ पर हजारों की तादाद में इस क्षेत्र के नहीं पंजाब से भी लोग यहाँ पधारे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये देश ऋषि मुनियों का देश है। भगवान वाल्मीकि जी जो इस देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भगवान के रूप में जाने जाते हैं। आप सब लोगों को ध्यान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इन्हीं परिस्थितियों के वश जब माता सीता को त्याग किया था, उस समय में हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने उनको शरण दी थी, और शरण देने के बाद में लव कुश जो पैदा हुए उनका पूरा पालन पोषण भगवान वाल्मीकि जी ने किया था। ये बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि उस वक्त वाल्मीकि जी ने समाज में एक मिसाइल कायम की थी। नारी का सम्मान जो सदियों से हमारे देश में बहुत बड़ी जो है खासियत है, और उनके बच्चों का पालन पोषण करना भी इस बात का संकेत करता है कि आज के समाज में वाल्मीकि जी का जो काम था
वाल्मीकि जी का जो ध्येय था उसका समाज में प्रचार होना चाहिए। एक दिन हम सब लोग मिलकर के वाल्मीकि जी का नाम ले ले, नहीं, घर घर में वाल्मीकि जी का प्रचार होना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए, तो ही सार्थकता होगी। मैं ये कहना चाहूंगा, भारतवर्ष देश प्राचीन देश है, ऋषि मुनियों का देश है, जो देश कभी विश्व का नेतृत्व करता था, जो देश विश्व गुरु था, जिस देश में विश्व के लोग शिक्षा, व्यापार, योग, आयुर्वेद सीखने के लिए आया करते थे, वो भारत महान देश आज पूरे जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। सीताराम मौर्य जी ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ परम आदरणीय संत धर्मनाथ जी मटीली वाले महाराज की जय। संत महापुरुष कर्मनाथ महाराज की जय। भगवान वाल्मीकि जी आश्रम लाल तख्ते विराजमान सानू जो संत महापुरुष संत पूर्णनाथ जी विछोड़ा दे के संगतां नूं चले गए ने, उन्हां दे दर्शाए हुए संत महापुरुष गरदारी नाथ जी जो मधुजा हुण सुथे सेवादार ने, वो भी अज इस स्थान ते संगतां दे दर्शकन वास्ते पहुंचे ने। और नेका ही होर महापुरुष जो है अज स्टेज ते विराजमान ने। राजस्थान दे नेतागण, पंजाब चों आईयां हुई संगतां, पंजाब चों आई हुई शोभा यात्रा चेतना मार्च जो हर साल की तरह इस साल भी अज हाड़ की मस्या ते जो है संगतां पहुंचियां ने। मैं जो चेतना मार्च जो पंजाब चों आई हुई है, अलग अलग शहरों के विचों दी होंदी हुई, अलग अलग पिंडां दे विचों होंदी हुई जो है, जिस तरह ये चेतना मार्च जीरे तो रवाना होती है, साडे प्रधान सरदार संत राम जी और साडे जिला प्रधान सरदार जगसीर सिंह जी, जिन्हां दा नाम छोटा छोटा नाम मतलब छोटू राम कहते हैं आपां नूं, ये साडे जिले के प्रधान साहब भी ने। और जो समुची टीम है साड़ी भगवान वाल्मीकि महाराज जी की, उन्हों की बदौलत जो हर साल जो है इतने चेतना मार्च पहुंचती है। जीरे तो चल के इस साल खुसा दल सिंह, शेर खां, सांदे हाशम, फिरोजपुर शहर, खाई फेमा, लखों के ब्राम के, गुदड़ टंडी, गुरुवर सराय, चक निदाना, फलियां वाला तो होंदा होया जलालाबाद, जलालाबाद तो रोड बामणी वाला विचों की पिंड जो उन्होंने आउंदे ने, दुमाले चक दुमाला तो होंदा है पूर्ण पट्टी, अरनी वाला, दरांग, हंबोर बाईपास, गंगानगर और मौजूदा जो तपोस्थान है श्री गंगानगर साहब मटीली रठान, जिथे साडे संत महापुरुष संत कर्मनाथ जी जो है मौजूदा इस डेरे के मुखी ने। और सारिया संगतां जिन्नियां भी आईयां इस शोभा यात्रा दे विच, मैं सारियां दा धन्नवाद करदा जो अपना कीमती समा कढ के उस ਇਹੋ ਜਿਹੇ समय जो अज मजदूर भरावां दे वास्ते बहुत
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ हाड़ की मस्या जो है इस स्थान पे जो है नहीं बल्कि राजस्थान पंजाब हिंदुस्तान में फेमस है कि इत्थे सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने 1958 दे विच इस स्थान पे जो है गर्मियों के दिन रेता के टिलियां दे विच तप किया धुआं साहब के उत्ते और 101 अखंड पाठ साहब कोतरी साहब का कराया और यह कुआं साहब का खारे पानी नू जो है मिठा किया जो अज पूरी संगत जो है इस जल नू छके स्नान करके अपनी जो दुख दलिद्र जो है दूर करती है क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। मैं संत महापुरुष करमनाथ जी का बहुत ही धन्नवादी हाँ जिन्होंने इस डेरे दे विच जदों असीं आने शुरू होए हाँ बहुत छोटा डेरा सी मेहनत की अज ये कई एकड़ों के विच जो है ये डेरा जो है ये बनाउण दे विच संत महापुरुष करमनाथ जी की बहुत वड्डी सेवा है और इस इलाके की वड्डी सेवा है और संगतां की वड्डी सेवा है। ज़्यादा समा मैं ना लवा क्योंकि गर्मी भी बड़ी है संगतां ने वापस भी जाना और लास्ट में यही तो अनुसार बेनती करूंगा भगवान वाल्मीकि जी एवं संत ज्ञाननाथ जी के चरणों में स्पर्श करता हुआ गद्दी असील मटिली राजस्थान के संत हमारे करमनाथ जी सम्मानित संत गणों मंच पर विराजमान जिला के जिला प्रमुख परम आदरणीय सीताराम जी मौर्य साहब अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि महासभा के प्रदेशाध्यक्ष शांतिलाल जी जावा साहब और यहाँ के सेवक कलेक्टर जी गिल साहब रणजीत सिंह जी भट्टी साहब कैप्टन साहब और मंच संचालन कर रहे मेरे छोटे वीर पंजाब से पधारे अठवाल साहब। मैं तो भगवान वाल्मीकि के बारे में एक दो बात जानता हूँ वो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वाल्मीकि अगर वेद न लिखते वाल्मीकि अगर वेद न लिखते तो कौन राम को जानता, राम का नाम कहीं नहीं मिलता तो कौन राम को मानता। तो मैं निवेदन करता हूँ वाल्मीकि महाराज की जय। मैं आप लोगों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि भगवान वाल्मीकि जी अगर हजारों वर्ष पूर्व रामचंद्र की करनी और कथनी न लिखते तो कौन रामचंद्र को जानता और कैसे उसकी पूजा होती। उन्होंने सारी करनी और कथनी भगवान वाल्मीकि जी ने लिखी। भगवान वाल्मीकि जी एक ऐसे संत हुए हमारे भगवान जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व भी कथनी लिखती थी। लव और कुश वहां पैदा हुए। हम उस भगवान वाल्मीकि जी के संतान हैं। वाल्मीकि समाज उस वाल्मीकि की संतान है जिन्होंने विश्व में नाम है। जय बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तुम आप लोगों के चरणों में एक विनती और करना चाहता हूँ। कौरव पांडवों ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ के अंदर सभी महापुरुषों संतों को बुलाया लेकिन माता और बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों उन पांडवों ने भगवान वाल्मीकि जी को नहीं बुलाया। जब सभी ने इसके बाद भंडारा शुरू हुआ, भंडारे के अंदर कभी भंडारा उनका संपन्न नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण के पास गए पांडव, कहने लगे भगवान ये भंडारा संपन्न नहीं हुआ, क्या बात है। तो उन्होंने कहा पांडवों इतने गौरव मेरे उत्साही मत बनो। जिस महासंत और जिस महर्षि को बुलाना चाहिए था उस आप लोगों ने यह निमंत्रण नहीं दिया, नहीं लेकर आए। तो उन्होंने कहा क्या ला रहे हैं वाल्मीकि को, हम लेकर आते हैं। भीम कहता मैं लेकर आता हूँ। भीम गया, भगवान को चकने लगा। उसकी ताकत पे अंदाजा हुआ भगवान को नहीं चक सका वाल्मीकि को। अर्जुन गया, सभी गए। तो उसके बाद में फिर कृष्ण जी के पास गए। बोला कृष्ण जी
वो बहुत महापुरुष है, वो बहुत ज्ञान नहीं सकते, इसका तो बताओ वो कैसे आए। तो उन्होंने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी नंगे पांव जाओ और भगवान वाल्मीकि को लेकर आओ, तभी आपका वनवास संपूर्ण होगा। द्रौपदी नंगे पांव ऋषि मुनि भगवान वाल्मीकि जी के पास गई, आंखें चल कर भगवान तपस्या में लगे हुए थे। वाल्मीकि नमस्ते कर नंगे पांव से प्रार्थना करती ही जब भगवान की आंखें खुली वाल्मीकि की, उन्होंने कहा पुत्री आप कैसे पधारी। बोला भगवान हमसे क्षमा हुई है, उस क्षमा को हमें माफ कर दीजिए, उस क्षमा का माफ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा बोला पुत्री, बोले हमें यह कराया था आपको बुलाना भूल गए, निमंत्रण देना भूल गए, तो हम आपको निमंत्रण के भूले के गलती क्षमा मांगते हुए मैं आपको लेने के लिए आई हूँ, आप चलिए तो हमारा भंडारा संपूर्ण हो जाएगा। जब द्रौपदी के साथ भगवान ने कहा था पुत्री मैं तेरे साथ चलता हूँ, भगवान वाल्मीकि जब वहां गए भंडारे के अंदर, तो भंडारे में कुछ नहीं था, भंडारे में कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भंडारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी ने कहा इसके अंदर एक चावल का दाना है, वही मेरे को खिला दो। तो माता और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब भगवान वाल्मीकि जी ने वो एक चावल का दाना खाया तो उन पांडवों का यज्ञ संपन्न हुआ और घंटाएं बजाने लगे। तो इसलिए हमारे भगवान वाल्मीकि जी और पांडवों का भी उन्होंने ऐसा किया। तो मैं इतने कहूंगा मित्रों, माता और बहनों, जैसे गुरु ज्ञाननाथ जी ने यहाँ आकर तपस्या किया, तपस्या ज्ञान कर जो ज्ञान बांटा है यहाँ पर, हमारे महापुरुषों में ऐसी ज्ञान है कि महाज्ञान जी ज्ञाननाथ जी ने यहाँ खारे पानी को मीठा पानी किया। इसके साथ एक उदाहरण हो रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। एक और है कि राजस्थान के अंदर भी हमारे एक संत हुआ थे नवल साहब जी, नवल साहब जी भी संत थे। नवल साहब जी परीक्षा लेने के लिए वहां के महाराजा ने कहा, क्या बोले, अरे नवले, अरे ओ नवले तेरे में क्या ज्ञान है। उन्होंने बहुत खड़े होकर महाराजा से कहने लगे, महाराजा मैं तो एक भगवान का सेवक हूँ, एक संत हूँ। तो बोले देखें कभी मौका आएगा। तो एक गाय बड़ी मरी गई थी, तो कह रहे उस नवले को लेकर आओ। जब नवल साहब को लेकर गए तो महाराजा ने कहा, अरे नवले तेरे में इतनी ताकत है तो इस गाय को जिंदा कर दे। तो माता और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नवल साहब ने कहा हमारे संत ने, उनके पास पानी का चिंता था, तो मंडल साहब ने पानी का चिंता मारा, वो गाय जिंदी हो गई। ये सत्य बात कर रहा हूं, आप कह सकते नहीं है। आज भी जाकर देखो जोधपुर के अंदर किला बन रहा था महाराजा का, वो किले की दीवार ढहने वाली थी, वहां से हमारे संत जा रहे थे। नवल साहब ने कभी जाकर देख लेना, ऐसे हाथ किया था, वो दीवार वैसे की वैसी खड़ी रहेगी। आज भी जाकर देखोगे तो दीवार टेढ़ी नजर आएगी आप लोगों को। तो मैं तरह के आप लोगों दोस्तों, मित्रों, साथियों, मेरे माता और बहनों, भगवान वाल्मीकि जी ने एक बात और कही थी कलम, जो बाबा साहब ने कहा है कई वर्षों, हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व भगवान वाल्मीकि जी ने कहा था, वाल्मीकि बच्चों लिखाई पढ़ाई करके उच्च शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना है। हमने तो वो शिक्षा नहीं सीखी, लेकिन वो शिक्षा ब्राह्मणों ने सीखकर वो विद्वान बन गए हैं, वो हमारे गुरु से भी सीखे हुए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, कुछ ज्यादा बोल गया, कुछ क्षमा हो तो माफ करना। मैं चरणों के साधु संतों के चरणों में शपथ करता हुआ मैं उनके साथ ही जय भीम। ਸਾਡੇ ਕਰਮਨਾਥ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਗਿਨੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀय सीताराम जी पूर्व ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ पूर्व प्रमुख नगर परिषद, ਸਾਡੇ ਕਰਨਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਾੜ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗਿਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, जी आया नु। प्रथम सृष्टि रचयिता भगवान वाल्मीकि
और विश्व ज्ञान के प्रत्येक परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। श्री श्री 108 बाबा संत ज्ञाननाथ जी महाराज और वाल्मीकि आश्रम मठीली के मुख्य संचालक बाबा करमनाथ जी महाराज और मंचासीन सरदेश संत महात्मा, ऐसे धार्मिक आयोजनों का सफल संचालन जब ही होगा जब संत महात्माओं के आशीर्वाद लेकर हम पढ़ाई की ओर अग्रसर हों। धार्मिक आस्था के लिए हमारे संत पुरुष हैं और शिक्षा का अनुसरण के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर का अनुसरण करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करके ही आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। स्थान श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ जी अमृत का कुआं मटीली रतान दे गद्दी नशीन परम आदरणीय संत करमनाथ जी वाल्मीकि आश्रम को पहुंचे संत गिरधारी नाथ जी ते होर संत जन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की लीडरशिप, मेरा छोटा भी रंजीत भट्टी जी मीडिया रिपोर्टर बीजेपी दिल्ली ते गुरु रूपी साधु साध संगत जी सारिਆਂ ਨੂੰ जय वाल्मीकि। हेलो सारी संगत गज के गुरु महाराज ज्ञाननाथ जयकारा बोलो, हाथ ऊंचे करके बोलो कि थोड़ी हाजिरी कबूल हो जाए। बोलो ज्ञाननाथ महाराज की जय। गज के बोलो एक बार और, बोलो ज्ञाननाथ महाराज की जय, गुरुनाथ महाराज की जय, सामने श्रोमणी संत करमनाथ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इस मटीली थान दी पवित्र धरती ते महान महान हस्तियां ते संतां दा दर्शन होया। गुरु महाराज दी दरबार दे विच पहली वंदना उस परमात्मा नूं, पहली वंदना उस परमात्मा नूं जिन्ने कुल पैदा जहान कीता, रंग बरंगी बनाई दुनिया ते बिना खंभ तो खड़ा आसमान कीता। इस परम पिता परमात्मा दी हजूरी दे विच उन्हां दे बिना हुक्म दे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलदा और बिन भागा बिना बिना सत्संग नहीं मिलते, बिन भागा बिना मेला नहीं मिलता, बिन भागा बिना मेल नहीं मिलता। एक साख भरती है, बिन भागा दुनिया में ना मिले अमृत भोग, बिन भागा दुनिया में ना मिले अमृत भोग। बल घड़ी ध्यान ना सुननी है थोड़े शब्दों दे विच, बिन भागा दुनिया में ना मिले अमृत भोग, मधु होए अमृत समाना। मधु शहद नूं कहा जाता है, अमृत समान हुंदा है। मधु होए अमृत समाना, खावे स्वान तजदे प्राणा। शहद अमृत समान है, लेकिन स्वान नाम कुत्ते दा है, कुत्ते दे भागां दे विच नहीं लिखिया हुंदा। रोटी चोपड़ के तुसी शहद दी कुत्ते अगे सिट दो, सुंघ के पासे हो जाऊगा। जे सुंघ लेवे ते खा लेवे ते समझ लो 5 मिनट नहीं लगते, मर जाता है। तां कहंदे उहदे बाणी दे विच लिखिया है कि कुत्ते दे शहद अमृत समान है, लेकिन भागां विच नहीं लिखिया। एवें ही सत्संग जरूर है। वो भाई साहब बोल रहे सी, कहंदा उन्हां नूं टाइम नहीं सी लिखी, उन्हां दे भागां विच नहीं लिखिया सी। मधु होए अमृत समाना, खावे स्वान तजदे प्राणा। फिर कहंदे मक्खी करे गंद का पाना। मक्खी होंदी गंदगी दा खुराक करदी है, गंदी थां बहंदी है। गंदे बंदे भी गंदियां गल्लां करदे ते गंदे थां ही बहंदे। मक्खी करे गंद का पाना,
ਖਾਵੇ ਕਿਰਤ ਤਜਦੇ ਪਨਾਨਾ। ਮੱਖੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫੰਗ ਚਿਪ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਗ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਰੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨਾ। ਮਿਸਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਿਸਰੀ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨਾ, ਖਾਵੇ ਖਰ ਤਜਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾ। ਖਰ ਨਾਮ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਧੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੜਕ ਦੇਣੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁਨੀਆ में ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ। ਪਹਿਲੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਸਟਰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਚੇ ਮੋਰ ਪਪਈਆ ਬੋਲੇ। ਪਪਈਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛੇ ਲਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਉਸ ਮੰਨਿਆ ਦਾ ਬਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੂ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ। ਸੇਵਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਤੇ। ਹੀਰੜ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਅਜਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਕਾਲ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਦਇਆਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, परम पूज्य श्री श्री 1008 सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज और भीख भगवान और देश भगत नेतागण जी और साध संगत, जो अज का दिन बड़ा वडभागा है, क्योंकि सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने इस पवित्र स्थान पर आके सन 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਲ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਅਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, एक नहीं कौते कीते सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने, इतने कौते कीते जिहड़े गिने नहीं जा सकते। ये उन्हां महापुरुषां दा स्थान है। जिस तरह श्री नाथ जी धर्मपाल जी महाराज महात्मा ने दस्या है, कहते ने संत शरण जो जन परै सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका पहड़ पहड़ अवतार। संत कहते ने शांत रहने वाले ने, साधु कहते ने जेड़ा अपने शरीर की साधना कर। पर सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी संत नहीं सन, वो तो महान पुरुष सन, अवतार सन कर जगत। क्योंकि किसी इंसान का कर्म नहीं जिन्होंने मुर्दियां में जाना पा देनी। जिस तरह भगवान वाल्मीकि जी होए ने, वो भी परमात्मा होए ने, किसी का कर्म नहीं कि पहलो किस्मत लिख देनी।
वाल्मीकि स्वामी जी ने श्री रामचंद्र जी के जन्म लैन तो 10,000 वर्ष पहले ही संस्कृत विच भोजदियां पत्थरां उपर रामायण की रचना कर दी ते साधु महात्मा ऋषियां मुनियां पंडितां ब्राह्मणां नूं ज्ञान करते रहे कि त्रेते युग के अवतार विष्णु ज्योति श्री रामचंद्र जी आउणगे ते मेरी लिखत के मुताबिक उस मातलुक की धरती पर आके कौतक करने। इसी तरह ही सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज ने जेड़े भगवान वाल्मीकि ने कर्म किए सन, इसी तरह ही सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने प्यारी साध संगत मुर्दियां विच जाना पा दित्तियां, मरियां मझां विच जाना पा दित्तियां, दियां नूं बंद कर लिया, जिन्हां नूं फड़ के अपने बोतल विच बंद कर लिया, जेड़े दरिया पुट्ठे वगा दिते, खारे खूह मिठे कर दिते, जेड़े चिखा विच चिणे हुए अग लाउण लगे मुर्दियां नूं उन्हां चिखा विचों सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज ने जींदी कर दिते। प्यारी साध संगत एक नहीं अनेकां कौतक कीते, अन्यां नूं अखां बख्शिश कीतियां। माता की सोनो इंग्लैंड दे विच एक डायमंड लड़की है, उस नूं अखां दी बख्शिश कीती। सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज 7 वारी इंग्लैंड गए हैं। जिस तरह ये आश्रम है उसे आश्रम हन इंग्लैंड दे विच। संगतां नूं पता है जो चेतर दी मस्या से इंग्लैंड तो चल के इस पवित्र स्थान उपर जो उथों दे सेवादार प्रेजिडेंट जो तेजनाथ जी इस जगह दे इस स्थान दे हर साल आते हैं। प्यारी साध संगत जो वाल्मीकि तीर्थ है उस जगह के सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने सन 1940 ਨੂੰ ਆਸਰ ला के भगवान वाल्मीकि का प्रचार किया। भगवान वाल्मीकि कौन सी? परमात्मा सी। दुनिया नूं दस्या उन्होंने जे गुरु ज्ञाननाथ महाराज दुनिया के नाम आते वाल्मीकि स्वामी का नाम ही नहीं सी होना, क्योंकि सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज इन्ने शिष्य सन, इतने चेले सन। जिस तरह गुरु गोरखनाथ का झुंड 1.25 लाख चेला सी, इस तरह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज चेले सन ते सारे गुरु महाराज की बख्शिश सी। जिस तरह कहते ने सतगुरु का उपदेश पतारे जन्म जन्म की भुखा, घर विच विघ्न पवे न कोई नीड़ न आवे दुखा। क्यों जिन्हां ने गुरु का बचन मन्या, गुरु के उपदेश से चले ने, जिहड़ा मामूली इंसान है उते भी सतगुरु की दया हो गई वो महान बन जाता है। जिस तरह गुरुआं की बाणी कह रही है, कीड़ी थाप करे पातशाही जे सतगुरु नदर करे। जिहदे उत्ते सतगुरु ने कृपा कर दी वो कीड़ी भी पातशाही कर सकती है। जिहड़ा पिंगला है वो भी पहाड़ ऊपर चढ़ सकता है, क्यों कि सतगुरु की ऐसी दया है। सतगुरु कहते किसनूं हन? प्यारी साध संगत सतगुरु कहते ने गुरुआं दी बाणी दस रही है। सुखमनी साहब की अष्टपदियां में दस्या है, 7 पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिस का नाम। 7 पुरुष कौन होए हन? 7 पुरुष होए हन भगवान वाल्मीकि जिन्हां दे हाथ विच कलम है, जिहड़े सतयुग दे विच भी सी, त्रेते दे विच भी सी, द्वापर दे विच भी सी। तुसी निगाह मार के देखो सतयुग दे विच तो उन्होंने रामायण की रचना की। द्वापर दे अवतार श्री कृष्ण जी होए, त्रेते दे अवतार श्री रामचंद्र जी होए, त्रेते दे अवतार श्री रामचंद्र जी होए। सारी दुनिया नूं पता है जिहड़ा श्री रामचंद्र जी सी उन्होंने रचना की, जन्म हिस्ट्री जो रामायण लिखी हुई सी। पर उन्होंने लिखे मुताबिक ही स्वामी वाल्मीकि के चरणों दे विच जिसनूं जगत माता सीता कहते हैं, सीता किसी माता के पेटों जन्म नहीं लिया,
ना किते मरी है सीता, वो धरती विचों निकली सी ते धरती विच समा गई। पर वो सीता जिहड़ी सी प्यारी साध संगत, वो भी जम्मण मरण तो रहत सी ते वो वाल्मीकि स्वामी के चरणों में सेवा करती रही। उसने गुरु मान के भगवान वाल्मीकि सतगुरु मान के। इस करके प्यारी साध संगत पहले नाम की हिंदू संप्रदाय दे विच पहले सीता का नाम आंदा, फिर दूसरे नाम ते राम का आंदा, सीता राम। प्यारी साध संगत त्रेते द्वापर दे विच कृष्ण भगवान आए, उन्हां कोल जिन्ना महाभारत दा जंग होया सी, उन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते असमेत जग रचा सी, वो संपूर्ण नहीं होया। वो किन्ना ने कीता? स्वामी वाल्मीकि ने। असीं मोटे मोटे अक्षर दस रहे हैं क्योंकि जो ब्रीक दसी ते बहुत समा बतीत हो जाएगा, क्योंकि जिहड़े इस टाइम वाल्मीकि तीरथ तो सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज के दरबार तो जो साडे महंत बाबा पूर्णनाथ जी गद्दी ते बैठे हैं, वो सुबह दे आए हैं, उन्होंने जल्दी जाना है क्योंकि मोटे मोटे वचन कर रहे हैं, इतिहास सुनाइए तो समा बहुत बतीत हो जाए। तो तिन्ना काला नूं ही भगवान वाल्मीकि जी जिहड़े ना तिन्ना जुगां दे विच ही सन। इस करके उन्हां नूं त्रिकालदर्शी कहंदे ने। होर किसी महापुरुष दी या गुरु दी या पीर दी या अवतार दी किसी दी इन्नी आरजू नहीं हुई। जे किसी नूं पता है तो प्यारी साध संगत हाथ खड़ा करके जिन्हां दी तिन्हां जुगां दे विच उमर होई भगवान वाल्मीकि जी तिन्हां जुगां दे विच उमर होई है। वो जम्मण मरण तो रहते हैं, पर पता नहीं असी इस स्थान से जदों आए हाँ सन 1987 में सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज सचखंड में चले गए। असी सन 1975 के साधु बने। इस नगर दे विच जदों आके सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज का स्थान है, इत्थे अपने हथी धुआं लाया है, उन्हां दा तप स्थान है। देखा कि यह जगह के सारे टिब्बे टिब्बे होंदे सन, पर संगतां दे संयोग नाल पर अज जो जिहड़ा ये तीर्थ है गुरु महाराज की बख्शिश दे नाल ओदी कृपा दे नाल दूर दरेडे तो जो कि जम्मू तो भी संगतां आउंदियां हन, हरियाणे तो भी संगतां आउंदियां हन, पंजाब विचों भी संगतां आउंदियां हन, क्योंकि ये राजस्थान दे विच दा स्थान है ही है। तो आप बड़े बड़े भागी हो, क्यों कि इस स्थान नूं ताई सेवा हो सकती है, ताई ये स्थान वध सड़ के चल सकता है जे आपां इत्थों दी मर्यादा बना के रखांगे। एक बहुत बड़ी सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज ने इस पिंड मटीली रठान की साध संगत नूं बख्शिश की है, देन दी है कि दूरों दूरों तो संगतां चल के किथे आउंदियां हन पिंड मटीली रठान दे विच। ते बड़े दुख की गल है जो साडे विजय कुमार अटवाल जी ने वचन किया है कि दुख की गल है केड़ी भी साल बाद एक मेला आउंदा है, उस मेले दे विच इस गली दे विच जिस तरह की पालकी आउणी है तो वो गली भी साफ कितनी हो सकती, ये नगर की कमी। तो प्यारी साध संगत असीं बेनती करते हैं नगर वालियां नूं, नगर विच रहने हैं, ये अपना ही नगर है, ये नगर ने साध संगत नूं इस बख्शिश की है गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने। तो इस तरह असीं बेनती करते हैं क्योंकि गुरु ज्ञाननाथ महाराज क्या करते सन, फौजां दे नाल मौजां हन, संगतां दे नाल लड़कदा हन, ते अपना दरबार है गुरु दरबार, सबका साझा दरबार है भगवान वाल्मीकि जी का, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी परमात्मा हैं। इस करके प्यारी साध संगत जी आप बड़े बड़े भागी हो जो दूरा दूरा तो चल के
इस मस्या के दिहाड़े आए हो तो असी बेनती करते हाँ जो कि जिला परिषद श्री गंगानगर तो श्याम लाल जी धारीवाल इस डेरे को ख्याल रखन, क्योंकि ये सब का साझा है। इन्हां दी असी जिम्मेवारी लाते हाँ, क्यों इस ये जिहड़ा स्थान है समाज का है, इस समाज को आप अगे लेके जाना है। असी इन्हां नूं राजस्थान के प्रधान नियुक्त करते हाँ इस डेरे ते। जिस तरह जिहड़े अपने अटवाल जी हैं इन्हां नूं असी पंजाब के प्रधान नियुक्त करते हाँ, जो कि जो इस आश्रम नूं लैके चलन। जिस तरह हर साल अपने कैप्टन साहब तो जीरे तो लैके शोभा यात्रा नाल अपने साथियों के छोटू राम जी जिहड़े वाल्मीकि मंदिर के प्रधान संत राम जी होर वाल्मीकि लोक भलाई सभा के मैंबरां नूं बेनती करते हैं इस तरह संयोग के नाल सारिया संगतां दे नाल रल के आपां इसकी शोभा वधाउणी है, क्योंकि अपने राजस्थान दे विच स्थान है। जे आपां इकट्ठे होवांगे ते तां ही इसदी शोभा होवेगी। जे आपां वखरे वखरे रह जावांगे तो कोई अपनी एकता नहीं रहेगी। प्यारी साध संगत सारिया संगतां नूं असीं बेनती करते हाँ, समुचे समाज नूं बेनती करते हाँ, क्यों कि ये जिहड़ा स्थान है ये बहुत पवित्र है। इस पवित्र स्थान पर कोई भी नशा नहीं लेके आंदा, कोई भी साधु महात्मा नशा नहीं वरतदा। इत्थे हर महीने मस्या लगती है, हर महीने 10 बजे से लेके 12 बजे तक सत्संग होता है। उस तो बाद गुरु का लंगर चलता है। तो हर महीने जिथे सत्संग होण प्यारी साध संगत उस नगर का देखो कितना सुधार होना चाहिए, उस कितना विकास होना चाहिए है। प्यारी साध संगत असी बहुता कुछ ना कहते हुए असी खिमा दे जज मंगते हाँ कि होर भी जो बुलारे आए हुए हैं या अहुदेदार आए हुए हैं जिन्हां दे नाम नहीं ले जा सके उन्होंने असी बेनती करते हाँ कि सारा ने एक मुठ होके इस तीर्थ नूं, ये सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज का तीर्थ है, क्योंकि सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ये देन है। इस नूं आपां दिन दुगुनी ते रात चौगुनी करके वधाउणा है, क्योंकि जदों असीं आए संगतां नूं पता ही है कि इस जगह ते की सी, ये सारा कुछ किवें बनिया। इस साध संगत ने प्यारी साध संगत संयोग दे नाल बनिया। इसी तरह ही हुण संयोग करके जिहड़ियां कच्चियां दीवारां हन वो पक्कियां दीवारां करनियां हन ते गुरु महाराज की कृपा दे नाल जिस तरह इसी तरह ही जग भंडारे होंदे रहन। असीं यही दिलों संगतां नूं बेनती करते हाँ, आशीर्वाद देने हाँ, क्योंकि इस डेरे वाल भी ख्याल रखना। तो प्यारी साध संगत हुण तुहाडे सामने जो कि साडे स्टेज सेक्रेटरी विजय अटवाल जी सिर्फ 2 मिनट वास्ते कुछ अपने वचन करेंगे ते फिर सत्संग समाप्त किया जाएगा। जो बोले सो नर पै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। साध संगत की जय। तो बड़े ही प्यार बड़े संगत जी बहुत ज्यादा बड़े भागा वाले हैं। इस सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की कृपा सदका एकत्र होने का मौका मिले।
ਸੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। हाजरा सतगुरु पूर्णनाथ महाराज की जय। गुरु प्यारे साध संगत की जय। संत बाबा करमनाथ महाराज की जय। संत बाबा गिरधारीनाथ महाराज की जय। सो धन्यवाद समुची साध संगत का। सो असी बहुत मैं अपने आप को भी ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ। सो मैं वाल्मीकि मंदिर ज्ञान आश्रम अमृतसर वालों आप सारी समुची साध संगत नूं इस मेले दियां करोड़ करोड़ बधाइयां देना। गुरु ज्ञाननाथ वाल्मीकि धर्म समाज के सेवादार होने के नाते संत बाबा गिरधारीनाथ महाराज जी वाल्मीकि तीरथ के सेवादार वालों उन्हां वालों भी करोड़ करोड़ बधाई देना। आदिवासियों के कौमी ग्रंथ साहिब ज्ञान प्रकाश जी महाराज जी तो चंद लवज जरूर संतां दे रूबरू दसना चाहना है क्योंकि पिछोकड़ की गल जेकर जिदा संतां महापुरुषों ने आप सारे दसिया अपने प्रवचना राही ने हाल किया उस तरह आदिवासियों के कौमी ग्रंथ साहिब ज्ञान प्रकाश की बाणी के विचों चंद लवज आप सारिਆਂ ਨੂੰ जरूर जानू करवाऊंगा। सो कहते इत्थे आरियां दे रूप विच लटेरे जदों आए उन्हां देश दे वसिंदे बंदी खानियां च पाए ऐसा ताणिया लटेरिया ने राजनीति जात आप बन गए स्वर्ण सानू आखिया चंडाल कदे शूद्र कदे भंगी दिता चूड़ियां दा नाम कदे भील भील कह के सानू कीता बदनाम असी रह के गुलाम मैल जिन्ना ली बनाए उन्हां ढाल ढाल सिक्के साडे कन्नां विच पाए जिन्ना साडे भोज पत्तरां तो सिक्ख्या ज्ञान उन्हां साडे लिए मारू यारी कीता फरमान सूत्र पढ़े कोई रामायण जां कोई शस्त्र उठावे ओदी जीभ दिओ कट हाथ गुट्टों जान लाहे तेरे डुले हुए खून विचों उगियां नहारां ओ देश हो गया आजाद गईयां बदलने बहारां पर तेरे घर अज भी गरीबियां दा वास ना कोई धरती ना धन ना वसीला तेरे पास कादा रोशनी दा युग जे है तेरे लिए अंधेर ओ तेरियां बच्चियां दे सिरां उत्ते गंदगी दा ढेर वाल्मीकिया जवाना ओ सोच मुश्किलां दा हल अज कौम दियां लगियां निगाहां तेरे वल वाल्मीकिया जवाना ओ यरा हरकतां चा जिदा देश नूं बचाई ओदा कौम नूं बचा जिदा देश नूं बचाई ओदा कौम नूं बचा जो बोले सोन रुपए भगवान वाल्मीकि महाराज सो ये आदिवासियों के कौमी ग्रंथ साहिब ज्ञान प्रकाश जी महाराज विचों ने मैं दसना चाहना है कि पिछोकड़ की बाबा जी 2 मिनट बस लैने क्योंकि इस इतिहास को चानना जरूर पा दें कि इतिहास के पिछोकड़ के पन्ने जिहड़े ने क्योंकि अज तो जे पिछोकड़ की गल करिए तो गल दे विच एक ठूठा सिर दे उत्ते एक खंभ हाथ दे विच एक टल्ली ते मगर एक झाड़ू बद्धा हुंदा सी। जेड़े मेरे वीर इत्थे बैठे हुए ने पढ़े लिखे ने उन्होंने इतिहास जे पढ़िया है ओदे विचों ओदे विच लिखिया होया है कि इस तरह दलितां दे नाल शूद्रां दे नाल भंगियां दे नाल ऐदां दे जेड़े मत भागे शताब्दी जेड़ी अपनी कौम लई वरती जांदी सी ओ किन्ने तोड़ी साडा जेड़ा रब है साडी जेड़ी ताकत अज सानू जिन्हां ने मान सन्मान ते ही दा एकत्र होण दा मौका दिता ओ बाबा साहब अंबेडकर जी महाराज जिन्हां ने अपनी कौम नूं एकत्र करन दा आइदा गल अपनी पहुंचाउण दा मौका दिता है वो कौन ने बाबा साहब अंबेडकर जी महाराज। श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने पूरी कौम नूं पिंडां
तो मैं बहुत धन्यवाद करता है संत बाबा करमनाथ महाराज जी का जिन्होंने निवाणिया गुरु महाराज जी जिन्होंने निवाणिया बहुत ज्यादा मान दिता है ते संत बाबा करमनाथ जी महाराज जी ने सो मैं दसना चाहना है कि सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने पूरे वर्ल्ड दे विच वाल्मीकि समाज नूं एकत्र करके वाल्मीकि समाज नूं प्रचार करके अते पूरी कौम नूं वाल्मीकि तीर्थ ज्ञान आश्रम अमृतसर दा जो रास्ता दिखाया है, क्योंकि सानू साडे भाईचारे नूं साडे समाज नूं पता ही नहीं है किथे सी साडे महापुरुष किथे सी किन्ना ने दित्ती देन ए सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी दी तपस्या ने देन दित्ती है। अज जिन्ना दे जेड़े असीं पक्के घरां दे विच रहण दे आ साडे लोग आ मनदे आ कि ए जेड़े पक्के घरां दे विच असीं रहणे किन्ना दी किरपा ना मिले ए गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी दी तपस्या दा फल है जेड़ा सानू मिले। उन्होंने जो घालना घाली है कौम लई जो अपनी कौम नूं समाज नूं सेध दित्ती है पढ़ो ओदी किरपा सदका उन्हां दी देन सदका उन्हां दे जो तपस्या कीती है ओदी किरपा सदका जेड़ा सानू अज पक्के घरां दे विच रहण दा मौका मिलिया कौम नूं एकत्र करन दा मौका मिलिया अपनी गल पहुंचाउण दा मौका मिलिया ते गड्डियां कारां दे विच झूटण दा मौका मिलिया क्योंकि साडी कौम पिंडां शहरां च कस्बियां दे विच उन्हां नाल शोषण कीता जा रहा है धक्का हो रहा अत्याचार हो रहा ते साडे समाज दे जिदा कि मेरे वीर कटवाल जी ने दसिया कि सानू नारे लाने बहुत आउंदे आ मैं बड़े विस्तार नाल सोच रहा सी अते समझ भी रहा सी कि वाकई ये गल बिल्कुल सच हैगी आ। तो मैं इत्थों दे बहुत सत्कारयोग लीडर साहबान नूं बेनती करदा है कि जिहड़ा इत्थों दा रोड हैगा उस नूं आप जी जिहड़ियां लाइटां लगवाओ वधिया ढंग दे नाल असीं वाल्मीकि मंदिर ज्ञान आश्रम अमृतसर वल्लों अते गुरु ज्ञाननाथ वाल्मीकि धर्म समाज दा सेवादार होने दे नाते मैं संतां नूं इह पूर्ण विश्वास भी दिवाउणा है कि असीं अपने वल्लों भी बहुत वड्डे पद्धर ते इत्थे सेवा भी अते आश्रम दी संगत वल्लों इत्थे जदों समागम होया करूगा असीं जरूर हाज़री भी लवाया करांगे अते वध चढ़ के जिहड़ा योगदान भी करांगे कि इस जिहड़ा आश्रम नूं होर भी वधिया जिहड़ा जिद्दां संतां ने उपदेश दित्ता है कि सानूं सारिआं नूं इकट्ठर हो के जिहड़े महाराज गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी दे बनाए हुए आश्रम ने उन्हां नूं सामभना ते संभालना चाहिए है क्योंकि इह साडी जद्दी विरासत है जो संतां महापुरुषां दे जरिए साडी कौम तक पहुंचाई जा रही है। सानू फकर होना चाहिए है कि साडी कौम दे विच एडे तकड़े महान संत बाबा करमनाथ जी महाराज संत बाबा पूरननाथ जी महाराज जिन्हां ने पूरी कौम पूरी उम्र ही अपनी कौम दे लेके ला के एडी तकड़ी विरासत नूं सांभिया होया है अते संतां नूं उपदेश दे रहे ने कि अपनी कौम दे इस अपनी कौम दे इस काबे नूं इस मदीने नूं अपनी कौम दे इस तख्त नूं संभाल लो अपने कौम दे वारसो इस तख्तां नूं संभाल लो पर असीं उन्हां दीयां इन्हां बेनतियां ते कदी अमल नहीं कर रहे। मैं अपनी कौम नूं बेनती करदा हां कि वध चढ़ के पिंडां दे विच इस तीरथ प्रति जाके प्रचार करो अते इहनूं डेवलपमेंट करन लई अपना दिन रात एक करके बाबा साहब अंबेडकर महाराज जी की सोच है अपनी कौम दे संगठन होवो पढ़ो करो वो जेड़ा नारा ओनू आपां ले जाइए। तो मैं इन्हां बेनतियां करदा हां बहुत ज्यादा धन्यवाद करदा हां मुझे साथ देगा अते जिन्हें साहबाना दा अते संतां महापुरुषां दा जो बोले सुनत है अपना अते बेगाना केड़ा पढ़ के भी तां जानिया ना कितनी शक्ति दे मालक सी लोकां ने पहचानिया ना जिन्नी करी तपस्या उन्ना होया ना सन्मान ऋषियां दे ओ महर्षि भगवाना दे भगवान ऋषियां दे ओ महर्षि प्रभु वाल्मीकि भगवान।
ਪਧਿਆਣੀਆਂ ਗਹਿਰਾ